Guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Anisha Zabeen, and today we will be starting, actually not starting, but we will continue a chapter, okay, which is physical and chemical changes. So, do you like the joke? I guess it's a lame joke. So yeah, let's start or let's continue the chemical change part, okay? So let's continue the chemical change because we have talked about physical changes, okay? So we have discussed about physical changes, right? We have discussed about physical changes. So today we will be discussing about chemical changes we were discussing, and then in the next video we will be discussing about rusting of iron and crystallization. So I'll have a quick recap of physical changes. What are physical changes? So physical changes, some things or some points you need to memorize or remember. I think you have memorized it. I know you're quite smart students or kids. So yeah. So first is physical properties. There is only change in physical properties. So what's a physical property? Physical properties are, properties like size, shape, state, and color of a substance. So size means how much bigger, smaller, shape, circular, triangular, color, red, brown, blue, yellow, and state means a substance is whether solid, liquid, or gas. Means a substance is solid or gas or liquid. So, second point is no new substances formed. It's really very important. No new substances formed, and it mainly reversible. So, what's a reversible change? It's in simple words, it can be reversed like melting of ice. See, if you take ice and then keep in a room temperature, it will melt. Again, you can again the liquid, the water, it can again convert it to the ice in when you keep the water in an ice tray and keep it in the refrigerator, so it can be changed. So melting of ice is a chemical change. So we have seen some of the activities, so I know you have remembered it. So let's move on to chemical changes. So some points you need to remember it. So it's somewhat topsy turvy of physical change means उल्टा है physical change का. Like molecular changes takes place और chemical property change in chemical properties. उसमें क्या था, पहले क्या था, physical properties में change था, अभी आएगा chemical properties में. chemical properties में या molecular changes में, मतलब एक चीज़ का हमने समझ लिया, समझ लो ले लिया, समझ लो हमने एक चीज़ ले लिया और उसको केमिकल चेंज चेंज कर दिया, तो वो ये मतलब पूरा मेथड होगा केमिकल चेंज हुआ, ठीक है? पूरा मेथड होगा केमिकल चेंज हुआ. यस, पूरा मेथड होगा केमिकल चेंज. फिर उसका जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा ना, जो सब्सटेंस फॉर्म होगा, तो वो इससे बहुत डिफरेंट होगा, इससे बहुत ही डिफरेंट होगा. तो उसको ही हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर चेंजेस. मॉलिक्यूल्स का चेंज अदला बदली होता है, ठीक है? अब ये इम्पोर्टेंट है. पहले क्या था, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है. और ये है इरिवर्सिबल. ये इरिवर्सिबल चेंज है. पहले क्या था, ये मेनली इरिवर्सिबल होता है. पहले क्या था रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल. तो रिवर्सिबल का उल्टा ही इरिवर्सिबल होता है, मतलब कि उसमें हम चेंज पर भी कैन नॉट, ये गेट होगा, तो ये गेट होगा, गेट बैक द इनिशियल सब्सटेंस रिवर्स. हम लोग यहाँ पे वो इनिशियल सब्सटेंस, ओरिजिनल सब्सटेंस को रिवर्स नहीं कर सकते. जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, आपने जब एक पेपर बर्न किया ना, बर्न करने के बाद आपको आपने पेपर को बर्न किया, फिर आप फिर वो पेपर फिर से ओरिजिनल पेपर में तो आ नहीं सकता. आपने जब एक पेपर को बर्न किया तो क्या निकला, ऐश निकलता है, एक काला काला सब्सटेंस निकलता है, और उसी ऐश से हम फिर से पेपर को नहीं बना सकते, राइट? तो उसी को हम बर्निंग ऑफ पेपर, वही रिवर्सिबल चेंज होता है. अब आप मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ मैं, एक सेकेंड एग्ज़ाम्पल लेती हूँ. मेल्टिंग ऑफ वैक्स और बर्निंग ऑफ वैक्स.
है, मेल्टिंग एंड बर्निंग ऑफ वैक्स। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स में वो फिज़िकल चेंज होता है, फिज़िकल चेंज, वो रिवर्सिबल फिज़िकल चेंज होता है। और बर्निंग ऑफ वैक्स होता है इरिवर्सिबल केमिकल चेंज। अब इसका डिफरेंस आपको समझ में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो मेल्टिंग और बर्निंग में बहुत डिफरेंस होता है। देखिए, मेल्टिंग मतलब वो जो अमाउंट ऑफ हीट होता है वो बहुत कम होता है, और बर्निंग में वो जो हीट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मेल्टिंग और बर्निंग में बहुत डिफरेंस होता है। मैं नेक्स्ट ये चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मेल्टिंग और बर्निंग का मैं डिफरेंस बताऊंगी, ठीक है। ओके, तो अभी एक्टिविटी देंगे। मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि ये चैप्टर फुल ऑफ एक्टिविटीज़ है, तो हम पहले एक्टिविटी देखेंगे। तो 6.6 का एक्टिविटी क्या है कि एक मैग्नीशियम रिबन लो और उसको सैंड पेपर से क्लीन कर दो, क्योंकि ज़्यादा मैग्नीशियम रिबन रहता है, ज़्यादा मैग्नीशियम रहता है उस मैग्नीशियम रिबन में। तो आप पहले क्लीन कर दो और फिर उसे टोंग एक चीज़ होता है, ठीक है। आप लेबोरेटरी में मिल सकता है आपको टोंग से, आपको ताकि आपका हाथ बर्न ना हो जाए, इसलिए टोंग्स से आप पकड़े एक फ्लेम के एक और बर्न कीजिए उसे कैंडल से, ठीक है। कैंडल से या एक बर्नर से, बंसन बर्नर, कुछ भी, स्पिरिट लैम्प, कुछ भी ले सकते हो आप। और क्या आप देखोगे, क्या आप ऑब्जर्व करोगे, एक ब्रिलियंट वाइट फ्लेम आ रहा होगा। जब आप ऑब्ज़र्व करोगे ना, एक ब्रिलियंट वाइट फ्लेम आपको दिखेगा, वो बहुत खूबसूरत होता है। लेकिन आप ज़्यादा देर तक मत देखिए, क्योंकि आपका आई साइट भी ख़राब हो सकता है। तो और ब्रिलियंट वाइट फ्लेम आएगा और फिर एक वाइट ऐश आप देखोगे, जब बर्न हो जाएगा एक वाइट ऐश फॉर्म होगा, या आप देख सकते हो उस वाइट ऐश को। तो वो वाइट ऐश क्या होता है, तो मैग्नीशियम एस लॉस इस प्रॉपर्टीज़, एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज़ है, वो मतलब गोवा में चला गया है, तो प्रॉपर्टीज़ है। तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, विच इज़ ऑल्सो सिंपल वर्ड्स में वाइट ऐश ही कह सकते हो। एक्चुअली ऐश ब्लैक होता है, ये वाइट होता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन वाइट कलर का होता है, तो वाइट ऐश निकल गया। लेकिन आप अब सोचो, ये पेपर भी तो वाइट है, बर्न करने के बाद ब्लैक ऐश क्यों निकला है, वो मैं अभी नहीं बताऊँगी, शायद नेक्स्ट वीडियो कब कभी भी बता दूँगी, ठीक है। तो वेट करना पड़ेगा। तो अभी इसका केमिकल फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है, केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल फार्मूला होता है, जैसे ये। तो मैग्नीशियम, और आपने मैग्नीशियम को बर्न किया तो मैग्नीशियम था उसमें, तो एक सेकेंड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से टपक पड़ा, राइट। तो ऑक्सीजन टपक नहीं पड़ा, मतलब ऑक्सीजन सपोज कंबाशन, राइट। सो ऑक्सीजन सपोज कंबाशन, तो ऑक्सीजन चाहिए जब आप कुछ बर्न करोगे, तो इसलिए मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन प्लस हो गया, और क्या बना, ये जो ये है ना, वो एरो है ना, ये इज इक्वल साइन नहीं करता, ये करता है बिकम्स, मतलब ये बिकम्स। हम थोड़ी देर बाद ये पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या फॉर्म है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म में, या वाइट ऐश। आप लेकिन वाइट ऐश मत लिखिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया, क्योंकि ये सिंपल वर्ड्स में वाइट ऐश भी कह सकते हैं। तो फिर इसमें केमिकल फॉर्मूला है Mg+O2 इज इक्वल्स टू MgO, नॉट इज इक्वल्स टू बिकम्स MgO। तो ये मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला है Mg, और ऑक्सीजन का O2। O2 सबको पता है, राइट। तो क्या बना, MgO बन गया। ओके, तो ये नेक्स्ट है, जब आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया ना, तो वाटर डाल दीजिए उसमें। आप एक सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आप टेस्ट करना होगा आपका रेड लिटमस या ब्लू, रेड लिटमस ले लीजिए, लिटमस पेपर ले लीजिए। तो आप देखो कि जब आपने डिप किया सोल्यूशन में, रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया, मतलब बेस है वो सब्सटेंस, वो सोल्यूशन, सॉरी, बेस सोल्यूशन है। तो फिर आपको इक्वेशन भी लिखना होगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर आपने प्लस किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया।
तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या था, MgO था। फिर वाटर सबको पता है H2 है। क्या बन गया, MgOH2। आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, ये सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो 6.7 आप देखेंगे तो कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट एसिड को आप ऐड कर लीजिए, और फिर एक आयरन नेल या एक हेक्सो ब्लेड, मतलब कुछ भी आयरन का ले लीजिए, और फिर उसको डिप कर लीजिए और थोड़ी देर के लिए रुकिए। तो आप देखोगे कि वो जो सोल्यूशन है ना वो ग्रीन हो जाएगा। कॉपर सल्फेट ब्लू है, ये ब्लू है, तो वो ग्रीन हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा। फिर वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, क्यों ग्रीन हो गया, क्योंकि आयरन सल्फेट फॉर्म हुआ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कॉपर सल्फेट था, तो हमने एक आयरन ने एक हेक्सोब्लेट को डाल दिया था, तो वो क्या बन गया, ग्रीन बन गया। तो वो, और एक चीज़ है कि, एक सेकेंड, मैंने शायद, ओ हाँ, तो और एक चीज़ है कि उसमें ना वो जो आयरन नेल में कॉपर का डिपोजिशन हो गया। हाँ, हमने लिखा है कि एंड इन द नेल अ डिपोजिशन ऑफ कॉपर टुक प्लेस, मतलब कॉपर का एक डिपोजिशन, कॉपर का लेयर ऊपर लग गया। मैं सोचा था मैंने नहीं लिखा, लेकिन मैंने लिखा है। तो केमिकल इक्वेशन देखेंगे तो कॉपर सल्फेट था, आयरन हमने डाल दिया, एक आयरन का नेल या कुछ भी, फिर आयरन सल्फेट फॉर्म हुआ और कॉपर। तो इसका है कॉपर सल्फेट का CuSO4 है, और आयरन का Fe है। तो आयरन सल्फेट है FeSO4 और कॉपर है Cu। मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, नॉट इंटरेस्टिंग बात आप याद रख सकते हो। ऐसे तो कॉपर सल्फेट है ना, एक सेकेंड, ये है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट, तो कॉपर का हमेशा Cu होता है और सल्फेट का हमेशा SO4 होता है, ठीक है। तो इन दोनों जब मिला दो तो CuSO4 हो जाता है। तो कॉपर, इसका कॉपर और इसका सल्फेट, तो इन दोनों को मिला दो, CuSO4 बन गया। अब आयरन सल्फेट, आयरन क्या है, Fe है, सल्फेट क्या है, SO4 है, तो इन दोनों को मिला दो, मिला के क्या होगा, FeSO4 होगा, ठीक है। ओके, तो वही था। अब 6.8 में आपको मैं शॉर्ट करके बता देती हूँ कि विनेगर बेकिंग सोडा ले लो। आपको एक हिसिंग साउंड सुनाई देगा जब आपने इन दोनों को ऐड किया, और हिसिंग साउंड सुनाई देगा, और एक बुलबुला सा गैस का निकल के आएगा। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं पता है, एफरवेसेंस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वो टर्म, एफरवेसेंस बोलते हैं, ठीक है। तो न वो गैस क्या है पता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका केमिकल इक्वेशन होगा, विनेगर होगा, बेकिंग सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर प्रोडक्ट। तो इसका केमिकल NaOH CO3 प्लस CH3COH becomes कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर प्रोडक्ट मतलब एफरवेसेंस। वो जो मतलब हिसिंग साउंड था। तो वो गैस को ना आप, वो जो गैस है वो फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर में डाल दो, तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ जो है कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर भी फॉर्म हुआ था। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब आपने लाइम वाटर में डाल दिया तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ और लाइम वाटर भी फॉर्म हुआ, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CaOH2 मतलब लाइम वाटर, और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और वाटर H2O। तो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे कि नया सब्सटेंस जब ऐड हो गया तो कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में भी गिवन और एब्जॉर्व। तो हीट, लाइट, फिर कुछ और रेडिएशन भी एब्जॉर्व से, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ऐसा। तो फिर जैसे आपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में देखा होगा शायद सो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एक, उसमें ना आप जब एक एसिड, मतलब मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ने जब मिला दिया ना तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा और हीट इवॉल्व होगा। तो उसमें भी एक एग्जांपल हो सकता है। तो एग्ज़ाम में ऐसा हो तो आप
दे सकते हो। तो साउंड में भी प्रोड्यूस, जैसे आपने विनेगर बेकिंग सोडा में देखा तो साउंड, एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हुआ, तो वो भी आप देख सकते हो। फिर चेंज ऑफ स्मेल और न्यू स्मेल में भी गिवन। अब जब एक आपने जब खाना जो होता है जो ऑयल में होता है, तो जब खाना ऑयल में था ना, तब आपने अगर रेफ्रिजरेट नहीं किया होगा, बाहर ही फेंक दिया होगा, मतलब बाहर ही रख दिया होगा, तो एक फाउल सा स्मेल, बहुत बुरा सा स्मेल होता है। तो वो स्मेल एक एग्जांपल हो सकता है इसका। तो फिर कलर चेंज हो सकता है, जैसे हमने कहा कॉपर सल्फेट और आयरन नील का देखा था, तो वो हो सकता है। और फिर गैस में भी फॉर्म, जैसे हमने विनेगर बेकिंग सोडा का देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ था, तो वही। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स थे, जैसे गैस फॉर्मेशन, एनर्जी चेंज, कलर चेंज और प्रेसिपिट फॉर्मेशन। ओके। तो एक प्रोटेक्टिव शील्ड, तो आपने ओजोन लेयर के बारे में सुना ही होगा। तो वो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है, जो सन का होता है। तो ओजोन वो रेडिएशन को एब्जॉर्व करता है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है या ब्रेक कर देता है। तो ऑक्सीजन बहुत अलग है ओजोन से। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन एक केमिकल चेंज है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, तो हाँ ये केमिकल चेंज है। तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अगर ओजोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्व ना करे तो हम लोग को हार्म पहुंचा, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पे पहुंचकर हम लोग को हार्म कर सकता है। तो ओजोन एक नेचुरल शीट की तरह इस रेडिएशन से डटकर सामना करता है। तो अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमें पहुंचा तो हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है, फिर हम जल के बर्न हो सकता है, ठीक है। तो ओजोन O3 होता है और ऑक्सीजन O2 होता है, तो वो बहुत डिफरेंट होता है, ये दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं। तो वही। और फिर एक है जो बॉन्जो पहेली है, पहेली ने पूछा है कि बॉन्जो ने पूछा है कि मैंने चैप्टर 1 में देखा था कि प्लांट्स प्लांट्स अपना खाना बनाते फोटोसिंथेसिस से। तो फोटोसिंथेसिस एक केमिकल चेंज है। तो पहेली ने पूछा था कि फोटोसिंथेसिस क्या पूछा है कि फोटोसिंथेसिस भी या केमिकल चेंज है। तो फिर हाँ, फोटोसिंथेसिस केमिकल चेंज है। तो उसने पहेली ने पूछा कि डाइजेशन भी एक केमिकल चेंज है। तो हाँ, डाइजेशन भी एक केमिकल चेंज है। तो इक्वेशन जो मैथमेटिक्स में होता है ना, तो वो बहुत डिफरेंट होता है साइंस के। तो वो जो एरो होता है ना, ये जो एरो होता है तो वो डिफरेंट है, वो इक्वल्स टू का बहुत डिफरेंट हो, वो बैलेंसिंग करना जो ये इंडिकेट करता है बिकम्स, ये इंडिकेट करता है बिकम्स। सो तो इस क्लास में हम लोग को बैलेंस करना नहीं चाहिए, तो आप अटैम्प्ट मत कीजिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो यही था केमिकल चेंज का। नेक्स्ट वीडियो में हम रस्टिंग ऑफ एंड क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। And thanks for watching. Subscribe to my channel, at the bell icon, and don't forget to share too, and comment me down how was the video. Thanks for watching too, and stay home, stay safe, and stay hygiene.